For example, if you're making a dosa and you're making the chutney of dosa, it takes a little time to make the chutney of dosa. But you have to have that area cleaned and वो एक साफ होके चटनी रेडी हो गई है. उस पे सिर्फ उस पे फोकस करो. उस बंदे ने सर्जिकल EQing कर रखी है, जैसे हम मास्टरिंग में जाके हर एक फ्रीक्वेंसी को सुन के उसको काट रहे हैं स्नेयर पे. तो 3-4 ऐसे करके लगे हुए हैं. तो मैंने उसको ऑफ करा. प्रोडक्शन में दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि अगर तुम्हें सारे डायमेंशंस ऑफ वेयर द साउंड कैन बी मैनिपुलेटेड फ्रॉम पता है, तो देन यू आर द अल्टीमेट मिक्स इंजीनियर. देन यू कैन बी रियली क्रिएटिव. देन यू आर द अल्टीमेट मिक्स इंजीनियर. वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट RXD Reverb. आई एम श्योर देयर आर मोर प्लगइन्स, बट लाइक ये डायरेक्टली लगाते ही यू कैन notice the difference. It's also very AI based, right? If I just show you the output of what all things we are removing, it's pretty weird. wet noises of the mouth. Mostly modern day song कुछ भी होगा. हाँ. तो drums and vocals are usually the priority. Exactly. Like this is a general architecture of any modern day song. What's up guys, we're back with another episode. तीसरी बार ही रिकॉर्ड कर रहे हैं guess हम. हाँ. 2 नाकामयाब कोशिशें हो चुकी है हमारी. Yeah, this time we have turned on every single thing that we needed to turn on. Yeah. Like in terms of like कि कैमरा रिकॉर्ड करना है, बट हमने चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करा. बट yeah, here we are. Exactly, yeah. So I think Augment had this idea that we could do this in the studio. In the studio, exactly. मतलब मैंने सोचा कि why not give it a fresh perspective. हम बाहर 2 बार ही बैठ चुके हैं. Right. Why not do it in the studio and also cover something which we are usually doing in the studio. I mean, for example, हम बात तो कर ही रहे हैं, but what if we can have a mix along with it? Yeah, and definitely. we're mixing and talking along with exactly. that. So that was the idea, I guess. Things will be more technical as well. और technical चीज़ें discuss करने का I guess यही एक better तरीका है कि we are in the studio. Right. We are doing something which is useful for the audience and also talking about things which are also useful for the audience. Definitely. So yeah. Okay, so for the mix, I had this idea basically. Last year मैंने ये project करा था. This is one of my very good friends and clients. Right. Alpha Man. And I've done a couple of songs with him. But initially when we started, I guess उनके पास भी अच्छा mic नहीं था. And the challenge was कि जो उनके पास whatever, it was a very intro mic basically. Right. है ना. और उससे जो भी record हुआ था उसको एक decent sounding track में which is somewhat release ready. मतलब release ready obviously it won't be of extreme quality obviously. Right. But release ready करना था उसको. So this is the challenge I took up. मैंने करा ये last time, but I guess this is a very good mix to discuss because a lot of people have beginner mic I would suppose. Yeah. है ना. And ये रहता है ये challenge कि यार इसको एक release ready situation तक हम पहुंचा भी सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते. तो आई गेस पहुंचा तो सकते हैं हम. डेफिनेटली काफ़ी लोगों के साथ ये एक चैलेंज रहता है ये कि तभी आई थिंक तू प्रोजेक्ट ये वाला लेके भी आया कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास एक USB माइक है घर पे और उनके पास एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन या फिर साउंड कार्ड नहीं है and they're directly recording things from a USB microphone. So we wanted to take this challenge and show it to you guys कि हम लोग क्या कर सकते हैं when it comes to having some such quality of vocals और वो एक beat पे किस तरह से mix करे जा सकते हैं with the tools that we have. Exactly. मतलब with the plugins and everything आप एक decent result कैसे obtain कर सकते हो whatever mic, whatever quality of mic, microphones or whatever your recording setup looks like. And at the same time कि हम लोग को जैसे कोई mix मिलता है तो हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं. जैसे आप यहाँ पे हमें देख सकते हो कि सारे stems किस तरह से मैनेज रखें, किस तरह से अभी बिल्कुल भी मैनेज नहीं है of course. Like this is the primary stage. जैसे तूने मेरे को stems दिए तो मैंने डायरेक्टली उसको import कर लिया है. Exactly. Yeah. So this is somewhat you would like somewhat the way you would receive your stems in कि बंदा आपको beat के stems देगा and he will send you the vocal stems. Yeah, but at the same time I think जैसे हमने पहले बात करी थी इस बारे में कि तू काफ़ी फाइल्स पे लिख देता है. Exactly. कि 140 BPM है उसका और उसका की क्या है. True. As a mixing engineer बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि उसकी कितनी उसकी टेम्पो है क्योंकि उस हिसाब से तुम्हारे डिले और रिवर्ब जितने भी टाइम बेस्ड इफेक्ट्स हैं वो अलाइन करेंगे. Even आपका मतलब if you just quickly type in the BPM, right. तो आपका प्रोजेक्ट भी अपने आप ही मतलब जो उसके वो है क्या बोलते हैं इंटरवल्स वो भी अपने आप लग जाएंगे ना बीट पे एकदम एग्जैक्ट लग जाते हैं. Exactly. You can also mark in the intervals ऊपर अगर आपको करना है तो हुक कहाँ पर है वर्स कहाँ पे है वो इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो ये स्क्रीन जैसे आप लोग देख सकते हो इस स्क्रीन से पहले एक स्टेप होता है जिसमें हम लोग अगर हमारा 140 BPM उसको हम टाइप कर देते हैं टेम्पो में. Exactly. एंड देन एट दैट मोमेंट एग्जैक्टली हम लोग सारे फाइल्स को ड्रैग करते हैं.
सो दैट इज़ लाइक अ मेजर थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू, और फिर वो मिक्स हो जाता है प्रोजेक्ट, और And बाद फिर में उसमें उसको फिर रियलाइन करना बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत लगती है इम्पॉसिबल ही है, ऑलमोस्ट लाइक मतलब इम्पॉसिबल, या फिर तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा सारी बहुत चीज़ों काम को करना स्टार्ट पड़ेगा, करके फिर से। एग्जैक्टली हो सकता है उसका भी एक तरीका है, बट आई फील कि स्टार्टिंग से it's मैनेज better करके to चलें। do it like the first thing you do is to So do the to know the BPM. tempo and to know the key of the song, because like तुम्हें जब ऑटो ट्यून यूज़ करना है या फिर कोई अगर तुम्हें पियानो ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो उसकी की एकदम से पता होगी, तो आई वुड Exactly, और अगर आपको reverbs लगाने हैं, delays लगाने, you need the Yeah. BPM. So but yeah my point was basically if you are sending stems, make sure you mention the BPM, and if you are receiving stems, make sure you ask for the BPM if it's not there. BPM Yeah. in the key basically. as a producer, I think like I really liked the way you kind of renamed the folder itself, that you had 140 BPM and the key. And the key mentioned. So I would learn in from the that, and folder I only. think I would probably implement that as well in my workflow, कि मैंने folder में mention कर दिया rather than just like writing it to the client, मैं तो because I just send the BPM कि yes BPM में ये blah blah blah, या फिर मेरे को कोई पूछ लेता है। एक step आगे जाके अपना यूजर नेम भी मेंशन कर देता हूँ so that people don't forget Yeah, me. no, that's great. So But yeah. I mean, I think we already can see here in some of the cases that like you can see in stems that Augment has mentioned his like Instagram profile, Instagram handle, yeah. Instagram handle, and like that's also a cool way of to like promote, yeah. to remind your client about you, like so that he can remembers you, Yeah, exactly. remember you. So But yeah, it's a good way, yeah. so yeah, this is how we get the stems. Now from here, what exactly I do is start managing the things, because ये ग्रुप्स में चीज़ें मैनेज होनी ज़रूरी है, Most definitely. और आई थिंक तू भी ये पसंद करता है कि चीज़ें जहाँ पर हैं वो ही रहें, उसके अलावा सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं, बिकॉज लाइक जिससे चीज़ें साफ लगें। Absolutely. So हम लोग वही करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 minutes, and we can maybe fast forward that and already get into like an arranged view of the session. project. But like अगर बहुत जल्दी से दिखाया जाए तो हम लोग बैठ के यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं, फिर जो भी चीज़ें कट आउट करनी है, हम बहुत ईजिली बाय शिफ्टिंग like shift select and command E is usually allowed for cutting, and they just like select everything, and the basic commands of Ableton Live. If you don't know what we're talking about, then तुम लोग को Ableton Live सीखना चाहिए हम लोगों से। So anyways, so that's a little CT I added there. Anyways, cool. So इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके ऐसे करके हम लोग चीज़ों को ग्रुप्स में मैनेज करेंगे, जो चीज़ें जिस ग्रुप में होनी चाहिए, जैसे गिटार के अगर कोई गिटार्स हैं यहाँ पे, या कुछ अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी है, सारे तो ड्रम्स I एक ग्रुप में, सारे मेलोडिक ट्रैक्स एक ग्रुप में, सारे इफेक्ट्स एक ग्रुप में, बेसेस एक ग्रुप में, इवन अगर तुम्हारा ट्रैक बहुत छोटा है तभी हम ये रिकमेंड करेंगे, तभी भी करो, बाद में प्रोसेसिंग के लिए और ये काफ़ी चीज़ों के लिए काम becomes करता है। fairly easy, yeah. एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज़ पे कि ग्रुप्स के साथ कैसे मिक्सिंग होती है, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, और एक रील एक वीडियो बहुत बार बोल चुके हैं हम ऑलरेडी, बिकॉज़ वी एम्फसाइज ऑन दिस अ लॉट, बिकॉज़ बहुत काम की चीज़ है और हम ऑन द डेली यूज कर ही रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स लाइक अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि आप सबसे पहले रीनेम कर लो चीज़ों को, कलर कोड कर लो एंड अरेंज देम इन ग्रुप्स, so that it just becomes easy for you to navigate along the project कि अच्छा ये हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, just becomes life becomes easy. It's really obvious, guys. Like believe me, groups में तो manage करना ही चाहिए बिल्कुल भी. So let's just directly dive into the cleaned session जहाँ से हम लोग mix करना start कर सकते हैं. Exactly, हाँ. So guys, ऐसा दिखता है जब हम लोग चीज़ों को मैनेज कर देते हैं, थोड़ा उसको expanded व्यू में भी दिखा सकते हैं, बट लाइक मैं थोड़ा इस में भी काफ़ी काम करता हूँ। हाँ, मतलब मैंने नोटिस करा आपको, आप कोलैप्स व्यू में क्यों काम करते हो? कोलैप्स व्यू में हाँ, पता नहीं, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है ऐसे यार, ये क्यों छोटा छोटा दिख रहा है सब। I like working in the expanded, मतलब सारे ग्रुप्स ऐसे बड़े ट्रैक्स बड़े बड़े मेरे को दिख रहे हो क्या पे कहाँ। आई थिंक हर एक का अलग तरीका है बात करने का या फिर काम करने का। सो इन माय व्यू कि अगर मेरे को मैक्रो लेवल में चीज़ें दिख रही हो तो इट्स ऑलवेज लाइक नाइस टू सी व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द ट्रैक। ओके, एंड लाइक यू नो फॉर मी टू बी एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन I would just see it from the macro. अच्छा यहाँ पे चीज़ हो रही है, यहाँ पे चीज़, because I could think of it like I don't know. It's like a personal thing where I relate to music in the macro sense because I don't want to fill things too much. I mean, does this view allow you to do something creatively to the mix या फिर ऐसा कुछ reason है मतलब? It's quite psychological because we are always usually thinking कि अब क्या करना है ट्रैक में. So I'm looking from this perspective कि कौन से टाइम पे किस चीज़ को टाइम देना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रम्स मैंने बना दिए, बेस बना दिया, एक अरेंजमेंट बन गई है, राइट? बट इफ आई एम इन दिस व्यू इन हेयर एक्सपैंडेड व्यू में, अगर मैं यहाँ पे काउबेल में यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ, राइट, ऐसे करके, सो आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे ट्रैक में क्या क्या चल रहा है, एंड टू जो चीज़ें सोनिकली हो रही हैं और विजुअली दिख रही हैं
उनका एक रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. That's how I relate things. ओके, बट इनका फिर मिडिल ग्राउंड भी तो है. मतलब अभी जैसे जो ये व्यू है, आई गेस ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड है. हाँ, उसका मिडिल ग्राउंड भी है. फिर एक ऐसे करके तुम अगर हम ऑप्शन प्रेस करते हैं किसी भी जगह पे, that's where it allows us to open quickly anything and close it, right? So you can always have the expanded views, and जो ये छोटी छोटी चीज़ें उनका like, I mean, the idea is जहाँ पर तुम काम कर रहे हो वो खुला होना चाहिए. Just be Yeah. comfortable with whatever way you are able to. For example, if I'm working in 8 to 8, now I'll open 8 to 8 and I'll work there. ठीक. Okay, so if I want to work in this area and quickly I'll just go back, like ठीक है हो गया काम, बंद कर दो. So that's the idea. Nice. That कहीं पे भी काम हो रहा है और फिर एकदम से बंद हो गया और दूसरी चीज़ पे काम हो रहा है. Like हम कंस्ट्रक्शन में काम करने जाते हैं ना, तो एक चीज़ को साफ कर देते हैं. फिर जैसे for example कुकिंग भी कर रहे होते हैं. I always give the cooking examples. You cannot make a mess in the kitchen basically. For example, if you're making a dosa and you're making the chutney of dosa, it takes a little time to make the chutney of dosa. But you have to have that area cleaned and वो एक साफ होके चटनी रेडी हो गई है. उस पे सिर्फ उस पे फोकस करो, and then it's ready, and then keep it aside and then prepare the dosa. Yeah, and we are looking at the table later on, तो हमें बैटर दिख रहा है, चटनी दिख रही है दूर. So that's the idea. कि मैक्रो में क्या चल रहा है भाई, काम हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है. So that's the idea. But yeah, your session should look like this. And जिस तरह से मैंने melodic tracks को arrange कर रखा है, basically जितनी भी चीज़ें तुम्हारे मेरे ट्रैक में melodic होती हैं, like flute, strings, कुछ भी ऐसा मेन एलिमेंट, जैसे मेन सैम्पल, आई थिंक वी कैन लिसन टू दिस मेन सैम्पल. या दिस थिंग, द हाई, दिस साउंड, द स्ट्रिंग्स, लाइक द फ्लूट, all these things would come in the melodic zone, in my opinion. The melodic group basically. Melodic group. कुछ भी नाम दे दो उसका. कुछ भी नाम दे दो. Make it a group. Yeah, because usually क्या होता है कि जब हम vocals के साथ डील कर रहे हैं और beat के साथ डील कर रहे हैं, so there is a beat. The priorities is like beat ऊपर होनी चाहिए. फिर vocals भी एक priority है, depending upon कि artist क्या बोल रहा है कि नहीं मेरे को आगे sound करना है, पीछे sound करना है. And then the melodic things are catering to that. That's the general kind of architecture. Architecture, yeah. For a even if it's not hip hop. हाँ, मतलब सिर्फ हिप हॉप में ही नहीं, इट्स लाइक मोस्टली मॉडर्न डे सॉन्ग कुछ भी होगा. हाँ, तो ड्रम्स एंड वोकल्स आर यूजुअली द प्रायोरिटी. एग्जैक्टली. लाइक दिस इज अ जनरल आर्किटेक्चर ऑफ एनी मॉडर्न डे सॉन्ग. तो मैंने इसको अपना एक एरिया दे रखा है जिससे मैं अगर यहाँ पर मेरे को लगे कि मेलोडिक चीज़ें कुछ क्लीन होनी है, तो ऑलरेडी हमने सफाई कर दी विद इन द नंबर ऑफ ट्रैक्स. आई फील दैट्स इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द ड्रम मिक्स एंड देन we'll like blend the drums with the melodic and the 808 and from there directly बात करते हैं. पहले what the first step usually was, I think, when we were setting up this project. Yeah. तो usually stems होती है, जैसे मैंने भी export करी थी. Okay. They were quite loud. क्योंकि मैंने शायद मतलब there's a lot of things you need to make sure कि अगर आप कर रहे हो stems export, जो मैंने बाद में realize करी, you need to turn off the master effects. You need to turn off the limiter. The limiter, exactly, है ना. और initially जो मैं किया करता था, I used to keep all the master effects on और सारी stems export करती, तो वो सब limiters से individually pass हो रही है, and then all of them are too loud. Yeah. और फिर जब वो एक साथ collectively place होंगे तो वो obviously squashed ही sound करेंगे. बिल्कुल. तो वो गलत है, बिल्कुल बेकार है. तो whenever you are exporting stems, make sure you turn off all the master effects. Yeah. जो तुमने loudness बढ़ाने के लिए करें. बिल्कुल. आई मीन लाउडनेस अगर तुम बढ़ा के किसी को स्टेम्स भेजोगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा उस पर. एंड अगर वो अपने एंड से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इट विल साउंड रियली हॉरिबल. हाँ, इट विल ऑलरेडी लाइक साउंड लाइक ये लिमिटेड ऑलरेडी है, फिर काफी लाउड है उसमें. काफी तो ये वाले स्टेम्स में भी तो नहीं, इसमें वो नहीं है, इसलिए मैं कह रहे ये तो गलत स्टेम्स भेजती है मुझे. तो यू कैन नॉट लाइक डू दैट. सो अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा होता तो हम लोग उसको आगे मिक्स नहीं करते. वी वुड आस्क आवर क्लाइंट्स कि आप लिमिटर को और चीज़ों को ऑफ कर दो. ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी हुआ है कि लोग न्यूट्रॉन और कोई भी नई ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली लोग चीज़ों को EQ करते हैं उसको लगा के उन्होंने मेरे को भेजा है. बट द फैक्ट इज कि इफ़ यू आर ए ट्रेन्ड इंजीनियर यू विल हियर द कंप्रेशन और समथिंग्स हैपनिंग. बट अगर आप बिना कर लगाए कुछ भी मिक्स कर रहे हो, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम द clients and not just your end. Quite possible. ऐसा बहुत बार होता है कि when you are just starting up right with like mixing projects and stuff, तो आपको कुछ चीज़ें नहीं realize होती कि this is a problem at the client's end. Yeah. और आप पूरी मेहनत लगा देते हो उसमें, आप पूरा दिमाग का जोर लगा दिया आपने कि यार ये ऐसे and then ये आगे क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रही के वाले आगे इसका पंच आगे कैसे आएगा when it's already been squashed. तो वो नहीं आ सकता ना. You need like a pretty untampered signal.
I wanted to like make a reel out of this. Yesterday I was like mixing a track. And उस track पे like usually I'll probably put that like EQ here. I want to probably put that EQ in the video itself. But एक बंदे ने इस तरह से EQ कर रखा था, अगर हमको उसको एक snare को EQ करना था. तो when you EQ a snare, you will listen to the fact कि उसमें snare में कितना उसमें mid range है, कितना उसमें snap आ रहा है, ठीक है? And you would go for that snap. Either you would reduce that snap या फिर उसका character थोड़ा नीचे ऊपर करोगे, बस जो भी आप करना है, या फिर थोड़ा बहुत हाई एंड कर दोगे, या फिर लोज काट दो मैक्स टू मैक्स. उस बंदे ने सर्जिकल EQing कर रखी है, जैसे हम मास्टरिंग में जाके हर एक फ्रीक्वेंसी को सुन के उसको काट रहे हैं स्नेयर पे. तो 3-4 ऐसे करके लगे हुए हैं इस तरह से, और वो इतनी ट्रांजिएंट साउंड है. हाँ, वो इतने पिन पॉइंट्स उसमें आप सर्जिकल करके कर क्या लोगे? सो मैंने उसको ऑफ करा और मैंने एक फ्रेश EQ खोली और मैंने 2 EQ कर्व्स लगाए और उससे मेरा काम हो गया. ऑब्वियसली मतलब आपको ये भी तो समझना पड़ेगा आप किस चीज़ पे कितना एफर्ट लगा रहे हो. अगर आप स्नेयर विच इज सच अ ट्रांजिएंट साउंड वो 1 सेकंड के लिए आ रही है, कितना एफर्ट की बात नहीं है. नहीं मतलब क्यों कर रहे हो एग्जैक्टली. जब वो इतने 1 सेकंड के लिए आ रही है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. आप उसमें बेसिक कट्स लगाओ और आपका काम हो जाएगा. सी द पर्सपेक्टिव इज कि अगर किक और स्नेयर और कोई भी हाई हैट है जैसे हम मिक्स करने जा ही रहे हैं, अब इसके बारे में हम प्रैक्टिकली भी बात कर सकते हैं. अगर हम उसको EQ कर रहे हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें 10 चीज़ों का ध्यान नहीं रखना. एग्जैक्टली. क्योंकि 10 चीज़ों का ध्यान वो मास्टरिंग के केस में रखा जाता है, तब हम थोड़ा बहुत सर्जिकल EQing करते हैं. तब भी यूजुअली सजेस्ट करा जाता है कि आप सारी चीजें मिक्सिंग में करो. फिर भी इतना नहीं होता. लेट्स से जो बेसिक ड्रम्स हो गए अपने किक स्नेयर हाई हैट, या उसमें आई डोंट थिंक यू नीड टू गो अबव एंड बियॉन्ड. या एग्जैक्टली कि ऐसे कुछ काट दिया. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं EQ कर रहा हूँ ज्यादा. आई डोंट कंप्रेस एनी अदर किक, है ना. एग्जैक्टली. आई गेस जो अगर कुछ जैसे यहाँ पे हमारे पे ड्रम्स पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, सो इस पे जैसे हम लोगों ने सारे स्टेम्स को बेसिकली सेलेक्ट करके नीचे भी पुश कर दिया था, जिससे लाइक गेन स्टेज भी कर पाए हम लोग. तो या जिस पॉइंट से मैंने ये चीज शुरू की थी, तो द थिंग इज इवन इफ द लेट्स से द लिमिटर वो सब भी ऑफ है, तभी भी इट्स क्वाइट यूजुअल कि वो स्टेम्स लाउड होंगी, है ना. क्योंकि हो सकता है कि ग्रुप्स पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है. लेट्स से सम किसी ने ड्रम पे कुछ सैचुरेशन लगा रखी है, कुछ लगा रखी है, तो आपकी यूजुअली स्टेम्स लाउड ही आएंगी. So in order to start up with your mix, it's a fairly good idea. तो उसका 10-12 dB आप कम करके शुरू करो. That depends. A lot of people send you a really dynamic mix as well. वो भी है. ठीक है, मेरे को काफी एक बारी बहुत ही ज्यादा डायनेमिक मिक्स मिला. उसको फिर बढ़ाना पड़ता है. So overall सब सारे स्टेम्स को जैसे कि बोल रहा है, सारे स्टेम्स को सेलेक्ट करो. अगर वो कम लाउडर है या फिर ज्यादा लाउडर है, उसको एक एवरेज लेवल पे ले आओ, जिससे फिर एक एवरेज लेवल बन जाए, उससे आप ऊपर नीचे चीजें कर सको. अब हमारे पास चीजें तो कम कर दो. एग्जैक्टली. जब हमारे पास सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो रखी हैं और गेन स्टेज ठीक ठाक हो रखी है, तो अब उनको एकदम एक एक करके हम लोग एक के बाद एक ऐड करके सुन सकते हैं कि हो क्या रहा है. एग्जैक्टली. या सो व्हेन इट कम्स टू ड्रम्स, जैसे कि हम बोल रहे हैं, यू डोंट यूज लाइक टू मच कंप्रेशन. ऑलरेडी हम लोग जिस तरह से एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, मे बी यू कैन फॉलो दैट इफ यू आर अ बिगनर, एंड इफ यू ऑलरेडी नो कि आप किस तरह से मिक्स कर रहे हो, बट आपके इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद ड्रम्स, मे बी समथिंग यू कैन ट्राई with from our tips that we're showing, right? Workflow. From our workflow. Yeah, exactly. So let's just listen to the drums here, and बिना लिमिटर बढ़ाए भी ये काफी बहुत loud sound कर रहा है. I'll just put it down. Even it's in the sample. Yeah. क्यों sample ही clipped था kick का. अच्छा. It could be like that. This is a pretty common thing in hip hop music, though usually samples are already clipped. Right. लगाते ही loud sound करें. So I mean guys, you can notice here कि मैंने सारे levels को already नीचे कर रखा है. So I'll go by default, like back to default, and I'll start from there because हमने थोड़ी बहुत चीज़ों को gain stage करने लग गए थे, तो हम लोग नए तरीके से गेन स्टेज कर देते हैं अभी. Exactly, yeah. Let's start. Cool. So the idea is कि ड्रम्स को जब हम मिक्स कर रहे हैं, तो हम इसको ड्रम्स को सोलो करके सुनते हैं. Okay, and we can also listen to the 8-bit because there are not so many elements inside the track. Just increase my levels. Cool. So fairly चीज़ें ठीक ठाक साउंड कर रही हैं, like because हम लोगों ने इनको गेन स्टेज कर रखा है. अगर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर रही हैं इस टाइम पे, then you have to kind of level each and everything. और हमने बेसिकली क्या करा है कि चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए हाई हैट स्नेयर हर एक चीज़ को कम ज़्यादा करिए फ्रॉम दिस एरिया रादर देन जो हमारा राइट में मेन एरिया होता है, उसको सो वी इग्नोर दैट. आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग कि whenever you are gain staging, like the first step should be to play with the clip gain. Right, exactly. है ना, rather than कि आप post
मिक्सर फेडर को हिलाओ, राइट, बिकॉज दीज आर पोस्ट फेडर मिक्सर्स, राइट, पोस्ट मिक्सर फेडर्स, राइट, जो भी आपने मिक्सर पे लगा दिया है उसके बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहे हो, हाँ, तो वो इफेक्टिव नहीं है उतना जितना कि आप इनिशियल जो ऑडियो सैंपल है उसी का क्लिप गेन कम कर दो, राइट. सो इन डिटेल द आइडिया इज कि ड्रम्स के ऊपर, जैसे तू बोल रहा है, ड्रम्स के ऊपर अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं और अगर उस बेसिकली ड्रम्स की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर है और हमारा जो प्री गेन है वो उधर है, पहले लेफ्ट में लाइन हो रहा है, तो यहाँ से हमारा लेवल जितना जाएगा उतना हमारे ड्रम्स प्रोसेस उस हिसाब से ही होंगे जितना जिस पे गेन पड़ेगा. अब उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो हो रहा है दैट इज द post fader, right? Post mixer fader. Yeah, post mix fader. So for that we can always like reduce it depending upon हम कितना भेज रहे हैं. So it's basically like a seesaw situation. Yeah. In my opinion. Yeah. But like it really depends. जैसे अगर तुम इसी में एडवांस जाते हो थोड़े और टॉपिक में, like for example अगर we listen to the different characters of the kind of music people are making, they sometimes push the hell out of pre, sometimes push the hell out of post. But that's the character basically you can build. That is something. Yeah. You can do when you are aware of the fact कि वो signal flow कैसा है, कैसा काम कर रहा है, कैसे काम so कर रहा है. that I feel कि mix engineering और प्रोडक्शन में दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि अगर तुम्हें सारे डायमेंशंस ऑफ वेयर द साउंड कैन बी मैनिपुलेटेड फ्रॉम पता है, तो देन यू आर द अल्टीमेट मिक्स इंजीनियर. देन यू कैन बी रियली क्रिएटिव एंड देन यू आर द अल्टीमेट मिक्स इंजीनियर वेयर यू नो what all are the parameters that I can change for that it's going to give me this sound and I'm covering all aspects of the area. That's for me how I like remember things. मैंने यहाँ पर ये चेंज करा था तो मैं वापस जाके उस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ with respect of whatever I've done now. Exactly. So like this is like the kind of way I can. But like, really tell you. It's really important that you know how the signal is flowing. Exactly. किस plugin से कहाँ कैसे. और जो तुमने changes करे उसको भी याद रखो. उसको भी याद रखो. Yeah. Because example कि मैंने this is also like a common thing जो beginner producers में होती है. They do not remember what they did. नहीं वो भी है but they do not think of the mixer as something which has a linear flow of signal. Yeah. मतलब वो aware ही नहीं होते बहुत producers. ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर प्लगइन्स लग गए तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि ऐसा भी हो सकता है कि सिग्नल पहले वहां से उसमें गया, उससे उसमें गया, उससे उसमें गया. इट्स जस्ट कि इट्स अ आइडिया कि ये सब इस पे एक्ट कर रहे हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक लीनियर फ्लो ऑफ सिग्नल है. देयर इज ऑलवेज अ सिग्नल फ्लो. देयर इज ऑलवेज सिग्नल फ्लो. तो यू फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. या यू शुड बी अवेयर कि ये चीजें हो रही हैं एंड इट विल open so many possibilities, not even possibilities but it'll clear so many things up for you कि अच्छा ये यहाँ पे फट रहा है, इस point पे फट रहा है. Yeah. So I can maybe control it here. I mean, this topic might elaborate the podcast, but it's definitely. Really important to cover this as well because मैं yesterday सोच रहा था इस बारे में कि जब मैं beginner था तब मेरे को पता नहीं था क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन में, राइट. आई डिडंट न्यू एवरी सिंगल थिंग अबाउट प्रोडक्शन, तो आई वाज ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि देयर इज समथिंग देयर व्हिच आई डोंट नो और ये मैं गलत कर रहा हूँ, राइट. बट नाउ सिंस आई नो एवरीथिंग अबाउट इट और मेरे को जब समझाना होता है चीज़ों को तो इट्स लाइक फेयरली ईजी कि हाँ मेरे को तो पता है, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए इशू है. सो गाइस लाइक व्हाट आई वुड सजेस्ट इन दिस सेंस इज कि पिन पॉइंट एवरी अदर थिंग दैट इज देयर इन प्रोडक्शन and also figure out till what extent can we have all those things. What I'm saying is कि क्या क्या हमारे पास tools रहते हैं, क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पता नहीं. For example, returns, whatever like is there, whatever tricks are there, but there will be always limited number of trips and limited number of tools till a certain point. उसके बाद it's just you and the mix. In my opinion, you know what I'm saying. But what I'm trying to say is that कि हम लोग को हमेशा लगता है कि इससे कुछ ना कुछ और आगे भी है. Like there's something new that I don't know and उस केस में हम लोग confused रहते हैं कि नहीं मैं बेकार mix engineer हूँ. Yeah, so it's important to know that everything that I've learned, this is it. Yeah. Okay, कि ऐसा नहीं कि इसके आगे भी कुछ है. So if you're confident at that level, then you probably would not go with the idea okay let me buy that plugin and only then I can mix. It's not true. कूल आगे बढ़ते हैं. ड्रम्स की बात कर रहा था मैं, तेरे को बता रहा था कि ड्रम्स में मैं क्या करता हूँ. ड्रम्स के ग्रुप पे आई ऑलवेज यूज ड्रम बस. आई थिंक तू नॉक यूज़ करता है. मैं नॉक यूज़ करता हूँ. और मैं एक बस एक्स्ट्रा एक और चीज़ यूज़ करता हूँ. सो ऑगमेंट सजेस्टेड मी दिस प्लगइन कॉल्ड नॉक व्हिच इज मेड बाय डीकैप एंड वी लव दिस प्लगइन. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट क्रेजी प्लगइन. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट बिफोर द पॉडकास्ट एज वेल कि इसमें प्लगइन में काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं. इट हैज़ लाइक ways to add punch, a different kind of algorithms, saturators. It's a one-stop shop for any kind of transient sounds.
not transient sounds exactly, but वो drums के लिए ही बना है. Could be transient sounds, man. Could be transient sound. Yeah. True. I mean, like इसमें 808 भी प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग. Exactly. ड्रम्स के लिए तो वो है ही जो हम लोग यूज करने वाले हैं आज. But basically it's from a producer who specializes in drums. Right. जैसे Decap है तो उस बंदे का focus ही is on drums. Right. To make hard hitting, good, punchy drums. उसका sound design ही ऐसा. उसका sound design ही वो है. Yeah. So he has made that plugin with drums in focus. कि इससे आप ड्रम्स पे लगाओ ऐसे एंड यू मेक योर ड्रम्स नॉक. तो वो काफी बढ़िया प्रोड्यूसर है Decap. You should check out his content. Exactly. But if you don't have that plugin, then Drumbus is there for you because this is Ableton Live's default plugin. And मैंने बहुत use करा है to be honest because it has this saturator. You can see here. It has like different kind of like different levels of saturation. Curve, yeah. We have a compressor here. We can dial in the trim settings. There's a crunch thing here, which is this area is responsible for the mids, yeah. right? Yeah. And the transient वाला area जो तुम्हें transient enhancer मिल रहा है Drumbus में. It's like the first knob in the knock का वो boost का. Yeah, it's punch, right? Punch basically. Yeah, so punch adds a little bit of transient in my opinion, but like it doesn't do it that much. Like it adds like the low end punch. I think I've generally noticed it. It doesn't add the transient factor that is supposed to be there on snare, hi-hat, everything. Got it. But अगर हम इसमें यूज़ करते हैं ना उसको, let's just like turn this thing on, let's just drive it से थोड़ा बहुत इसको blend करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, crunch थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, drive थोड़ा बहुत ऐड करने पे कैसे sound कर रहे हैं drums हमारे. Definitely आप instantly snare सुन सकते हो. स्नेयर में सुन सकते हैं. हाँ, ओवरऑल ड्रम्स भी काफी लाउड हो रहे हैं. इस चक्कर में तो मैं कंपेंसेट भी कर रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा पुश डाउन भी कर रहा हूँ. एंड आई एम आल्सो लिसनिंग टू कपल ऑफ थिंग्स साइड बाय साइड. तो उसको ब्लेंड करते हैं हम लोग अंदर ज़्यादा. एंड लाइक डिपेंड जैसे क्रंच जो तू बोल रहा है कि स्नेयर बाहर निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ द क्रंच. एंड मैं थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट फैक्टर भी ऐड करूँगा तो इट विल ब्रिंग दैट. बट ये जो कॉम्प है ना, this is one of the reasons why I use Drumbus because Knock doesn't have a compressor. Yeah, I know. Okay, so when I want my drums to be lifted even further, I want things to be sounding like full in the mid range. Try this out on your in your next track. Any track, just put Drumbus and blend, let's say 27%. Even in that much तुम्हारा snare और 30-35 के around blend करके थोड़ा सा blend करके देखो. Yeah. Some bit of the compressor. Yeah. And compressor का threshold is I think the trim. No, this is basically the output. Okay, this is not supposed to be. का कोई इसमें threshold वगैरह you cannot set. You cannot set a threshold. It's just an on and off button. Yeah. Nice. So ये भी बढ़िया है. So वो भी अच्छी चीज़ है क्योंकि तुम बस एक बटन के और एक ट्रिम के डिसीजन पे अपने ड्रम्स को कंप्रेस कर रहे हो. Yeah, I mean ये चीज़ मैं अभी अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि when you have a lot of things to control, then you become confused. Yeah. है ना कि True. ये भी और ये But अगर क्या हो रहा है. बट अगर कम चीजें हैं and you can hear कि वो क्या हो रहा है, then it's a fairly easy decision to make कि ये ऑन रखना है कि ऑफ रखना है. Definitely. और मैंने इस कंप्रेसर को हर एक टाइप के जॉनर के ड्रम्स पे टेस्ट करा हुआ है और मेरे को कोई भी ऐसा चीज़ सुनाई नहीं देती जिसमें कंप्रेसर बहुत स्लो हो और धीरे रिएक्ट कर रहा हूँ. मैं समझ गया. So this is definitely made for a faster compression. Got it. Okay, and इसमें और जैसे हमारे Decap ने Knock में दे रखी चीज़ें that you can listen like that you can select the particular key of your sub and अगर तुम्हें चीज़ों को और एक्सटेंचुएट करना है बहुत ही लो एंड में तो तुम उस लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारी 808C में है तो तुम उसके सेलेक्ट करके उसको बूस्ट कर सकते हो. ऐसा है ना उसमें वो है बीच में सब वाला नॉब है. वी कैन फाइनली ओपन द प्लगइन एंड यू कैन शो इट टू देम कि नॉक में वरना हम सब्जेक्टिवली बात करते जाएंगे. तो अगर जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक सब का नॉब दे रखा है, यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर की एंड यू कैन बूस्ट कितना तुम्हें उसका डीके रखना है नहीं रखना, सारी चीज़ें यहाँ पर भी दे रखा है ड्रम बस में. यू कैन सेलेक्ट दिस एरिया, you can select this is basically for the key. Yeah, it's for the key and like which where you want that exact. तो boom बढ़ा दो. हाँ, तो boom कर सकते हैं हम लोग. frequency कौन सी frequency पे we can listen कि कौन से factor पे हो रहा है, you know. You can see it. So you can listen to the particular key. काफी comparable है दोनों तो. हाँ, काफी comparable भी. It won't be a surprise अगर Knock ने इससे Knock कह रहा हूँ, Decap ने इससे inspire होके ही बोला कि चलो because let's make a plugin which looks better and does the job exactly. Yeah, but like Knock में दो तीन चीजें एक मैंने notice करी. एक तो gain match है यहाँ पे. Okay, we also have this high quality good and pristine thing which I recently tried out. For some reason on some track I
preferred the off mode, but because in the good and pristine mode, it didn't sound good to me. Okay. Anyways, यहाँ पे एक tone option भी दे रखा है. Tone से हम अपनी drums की जो tone है, उसको थोड़ा हम character दे सकते हैं. If you want the more high-end character, or like you want like more faded out drums, Got it. less high centric. और ड्राइवर तो दे रखा ही है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ. सो इफ़ आई डोंट आई स्टार्ट डायलिंग माई सेटिंग्स एट 50%. दैट्स माई यूजुअल चेन. ठीक है, अब टाइम आ गया चीज़ों को साथ में सुनने का, बिकॉज अगर आप मिक्स कर रहे हो मेरी तरह ऐसे बस सोलो करके, तो यू आर नॉट डूइंग राइट. तो यू नीड टू ब्रिंग द मेलोडिक स्टफ, एंड तभी हम लोग ग्रुप्स बना रहे जिससे हम चीज़ों को ब्लेंड करके ऊपर लेके आ पाए. क्योंकि हमने किसी चीज़ को मिक्स करा नहीं, हम लोग एक 3 फेडर्स को यूज़ करके मिक्स कर रहे हैं बस अभी. So this is like the typical way of mixing, because in earlier times people used to just make groups and they used to just like sit on the decks. 7-8 channels होते थे, and then they are adjusting the levels. Yeah, अब इतना micro level पे थोड़ी कोई कर रहा है. अभी मेरे को बस just remind हुआ क्योंकि this is this basically similar way. Yeah. कि हम सब ग्रुप्स को ऊपर नीचे करें, फिर उसके individually जाके हम उसको थोड़ा बहुत blend कर रहे हैं. If needed. Fine tuning. If needed. Yeah. So अगर आप पहले मोमेंट से fine tuning में लग गए, so it's not a faster way of mixing. So that's what we are talking about here. Cool. Let's use the clipping this time. Yeah. And since मैंने वहाँ पे crunch थोड़ा बहुत बढ़ा रखा, तो I can blend it down and bring this air, which is a similar thing. So personally, I've noticed this one goes a little more to the high end, exactly. and the crunch works in the mid, mid highs. Yeah, air I only use when I know I have to lift the high arts. Yeah. So right now we are on headphones. Yeah. हम लोग अभी हेडफोन्स पे हैं और हम लोग हेडफोन्स की सेंट्रिक में मिक्स कर रहे हैं. सो इट रियली डिपेंड्स कि ये हाई और एयर कितना होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका मॉनिटरिंग क्या है. True. और अगर हम लोग एक और प्रोफेशनल सराउंडिंग में मिक्स कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हम लोग केयरफुली ब्लेंड करेंगे इन सब चीज़ों को ऐसे, बिकॉज हाई एंड और मिड्स बहुत ख़राब कर देते हैं तुम्हारे ड्रम्स को. कूल. सो हम लोगों ने बेसिकली 808 को भी प्रोसेस नहीं करा अभी, तब भी हमारी चीज़ें बेसिकली सही साउंड कर रही हैं. क्यों? क्योंकि वो एक राइट लेवल पे है बस. बट हम उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं इस पॉइंट से जाके, तो हम लोग थोड़ी बहुत सफाई करनी शुरू करते हैं. विच वंस योर ड्रम्स आर प्रोसेस्ड अ लिटिल बिट, तुम्हारे गेन्स सही साउंड कर रहे हैं, उस लेवल पे चीज़ें साउंड कर रही हैं जैसे यू कैन लिसन टू इट. तो EQ कर देते हैं अभी बेस हमारी किक को, एंड वी कैन मेक इट मोनो एज वेल. किसी केस में अगर किक में थोड़ा कैरेक्टर, तो वी कैन मेक इट ऑलवेज स्टीरियो. इट रियली डिपेंड्स. समटाइम्स पीपल लाइक ब्रेक द रूल्स. रिगार्डलेस वी कैन कीप इट बेस मोनो तो कर ही देना चाहिए, आई गेस. हाँ, बेस मोनो तो कर देना चाहिए. ही देना चाहिए, मतलब यू डोंट वांट योर किक टू बी इन द साइड्स, नहीं तो फिर किक कैसे बची वो किक. सो वही डिसीजन है कि बेस मोनो करना है फिर मोनो करना है. या सो इन द केस ऑफ दिस 808, बिकॉज इट डजंट हैव एनी कैरेक्टर इन दैट स्टीरियो सेंस, वी विल प्रॉब्ली मेक इट मोनो. एंड ये सब चीज़ें तुमने हर एक किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो में देख ली होगी जो हम लोग कर रहे हैं. साइड चेनिंग इट, EQing इट, एंड ये तो फेयरली स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं कि ये तो करने ही होते हैं कि ये करो, EQ करो. एग्जैक्टली. हम एक चीज़ तुम्हें रिमाइंड कर सकते हैं, इवन दी मोस्ट प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स डोंट मूव दीज नॉब्स. एंड दिस दे आर so important in my opinion, because किस तरह से आपकी 808 डक हो रही है और वापस आ रही है. अगर that would make your sound, that would make your track have a bounce or not have a bounce. There is a subjective way of saying this in my opinion. I just feel कि because attack और release कितना भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है कोई भी, but अगर तुम्हारे केस तभी काम करेगा वो जैसे अगर तुम्हारे जिस तरह से पैटर्न तुम्हारी किक का है, कितनी फास्ट तुम्हारी किक है और वो रिएक्ट कर रही है 808 के हिसाब से, तो it really depends. Definitely, because it's a timing issue. वो shape तो करना ही पड़ेगा compression curve को, but 80% of the time in my opinion faster attack would always work. Always works. क्योंकि अगर आप साइड चेन कर रहे हो तो अटैक का कॉन्सेप्ट ही है ना कि as soon as the kick hits the bass needs to go down. Bass has to go down. तो but जितना जल्दी होगा उतना बेटर है. But हर एक ट्रैक में अटैक तो फास्ट हो ही सकता है, like 95%. Release तो you have to. But release in like it really depends कि कैसा गाना है, क्या उसका कितनी जल्दी किक आ रही है, कितनी जल्दी बेस आ रहा है, किस तरह का बेस है. Because as you told me earlier, in hip hop like there are percussive bass as well. Rather so वो भी है, दोनों depends like basically the two different kind of ones. All the types of basses are there. Yeah. So it depends on. होता है कि बेस भी छोटी है. Yeah. So if you want
to preserve its character, Yeah. you need the release to be faster. Yeah, or in some cases like the kicks are so like it has to react faster, very right? quickly. Yeah. So in this case, like let's just take this case. हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमारे किक के लिए स्पेस बने और एकदम से 808 के लिए भी स्पेस बने, राइट? सो इफ यू डोंट साइड चेन, then in earphones and in everywhere you will hear the transients like distorting together. Exactly. हो ही जाता है. ऐसे कुछ होने लग जाता है. Cool. अच्छा, एक तेरे को चीज़ बताओ, like this is a actually legit question जो मुझे ही पूछना है कि जो EQ है वो ये कर रहा है कि वो किक को शेप कर रहा है, इनपुट सिग्नल को शेप कर रहा है, या फिर वो आउटपुट को शेप कर रहा है? It's supposed to shape the input signal. It is, right? It is supposed to shape the input signal. कि कौन से input signal को हम लोग ये मैं क्लिप काटूंगा और अपने एक दोस्त को भेजूंगा क्योंकि हमारी लड़ाई हो रही थी इस बात पे कि वो कह रहा था since you can hear it's basically a mode in which you are able to hear what's the signal coming in, so you can shape it accordingly कि इसका जो high end character है वो side chain को matter करेगा नहीं करेगा. Got it. और मेरे को clear था, मतलब I was clear. So you can apply a band pass filter, a low cut filter, a notch filter, whatever to the signal that is coming to your side chain. And then जो आप apply करोगे EQ से उससे साइड चेन होगा, उसके बाद का जो सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली साइड चेन होगा. परफेक्ट. बहुत बढ़िया. Because usually when you are making space with the side chain, you're always making a space for a particular frequency. It could be a case of a vocals as well, that you want the high end or the mid section of the vocals to side chain your reverb of the vocals or your saturation of anything that is put in your some return track. तो तुम साइड चेन किसी चीज़ का भी किसी से भी कर सकते हो. Cool. So आगे बढ़ते हैं. Right. So from here basically हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा बहुत पैन नहीं करा. मैंने पहले ही कर दिया था, बट अभी बताना ज़रूरी है कि स्नेयर, परकशंस, काउबेल, जितनी भी चीज़ें हैं राइट लेफ्ट थोड़ी बहुत पैन करके हम चले. Even the snare. Yeah. So it's really important. क्यों स्नेयर? क्योंकि जब भी हम ड्रम्स बजाते हैं तो ड्रम्स का पर्सपेक्टिव क्या रहता है? स्नेयर लेफ्ट में रहता है, हाई हैट लेफ्ट में रहती है. सो देयर इज ऑलवेज ड्रमर्स पर्सपेक्टिव. व्हेनेवर वी रिकॉर्ड ड्रम्स इन स्टूडियो वी हैव टू पर्सपेक्टिव, लाइक द वे वी कैन प्लान आवर सेशन एज एन इंजीनियर. तो ड्रमर्स पर्सपेक्टिव होता है और एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव होता है. गॉट इट. तो तुम या तो स्नेयर को राइट पैन कर सकते हो या फिर लेफ्ट पैन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी. यू शुड पैन इट slightly. Yeah, slightly. Why? Because kick एकदम सेंटर में, 808 एकदम सेंटर में रहनी चाहिए. स्नेयर क्यों आए? स्नेयर अगर 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, it सब make some space for it. हाई हैट अगर 2 हो जाए, दूसरी हाई हैट अगर 3 हो जाए, it's like that. अगर ज़्यादा हाई हैट्स लेफ्ट में हो गए तो एक हाई हैट राइट में कर दो. But just make some space. Yeah, don't make that much space that it going too much stereo. In my opinion, that's why I play in the range of 5 to 8, 5 to 10, whatever. Yeah, under 10 कर सकते हैं. 10 could be something where like some side percussion is coming, tak tak, or like if you have anything else which is supposed to be there and it doesn't have a space, I sometimes use auto pan. वो भी ठीक है. हाँ. कि मतलब कुछ चीज़ें लेफ्ट राइट पैन हो गई हैं, जब बहुत बड़ा मिक्स होता है ना तब एक चैलेंज होता है पैन करना. तब मज़ा आता है कि किस तरह से चीज़ों को स्प्रेड अराउंड करा जा सकता है. So whenever you're recording, whenever you're producing, always plan the panning already. Record that many of double takes that you can balance out your left and right. Record, like make that many melodic lines. Yeah, exactly. That could be placed on the left and right. Add that many percussions ताकि आप balance कर सको चीज़ें. That's one reel we can cut from here. Right. Exactly. Yeah. Cool. So so guys, like drums process हो गए, vocals पे एकदम से shift मारते हैं. So जितने भी effects हैं, कुछ भी हमने already उनको थोड़ा बहुत pitch up pitch down कर रखा है. काफ़ी केसेस में सारी चीज़ें बहुत लाउड रहती हैं, तो हम लोग, मैं भी क्या करता हूँ कि जितने भी इफेक्ट्स हैं ना सभी के स्टेम्स को और थोड़ा लाइक सेलेक्ट करके नीचे कर लिया. बिकॉज इफेक्ट्स हमेशा पीछे रहते हैं और दे नीड टू हैव रिवर्ब एंड व्हाट नॉट. सो वो सारे एक ग्रुप में डिवाइडेड है. लेट्स जस्ट डायरेक्टली डाइव इनटू द वोकल्स एंड द मेन थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे. सो दिस विल बी द बेस्ट थिंग फॉर वोकल मिक्सिंग इज टू एट द स्टार्ट फॉर मी इन एनी music is to listen to the melodic stuff with the vocals. Run the game or you get played. Cool. तो अब जैसे मेरे पास एक question था कि if the vocals are recorded on a decent or a shitty mic, shitty तो क्यों बोलना, पर चलो yeah, थोड़ा मतलब beginner level mic, so it is quite
ऑब्वियस कि वो किसी ट्रीटेड कमरे में भी नहीं होगा, राइट राइट. है ना. मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी पास हाँ, रिफ्लेक्शंस होती हैं काफ़ी बारी. होंगी, तो इज इट लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्लीन दोज रिफ्लेक्शंस फर्स्ट, या फिर उनको रख लो, या फिर हाउ डू यू मैनेज दोज रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत कैरेक्टर ऐड कर देती हैं एंड देन मतलब बहुत चीज़ें अजीब हो जाएंगी उस रिफ्लेक्शन. रिकॉर्डिंग के सबसे बड़ा मेन दुश्मन is the reverb. Vocal recording का सबसे बड़ा दुश्मन is the reverb. Room reflections. Yeah, If any engineer can hear that, वो directly बोलेगा सबसे बेकार recording. Because like उसको cut down करना बहुत मुश्किल हो जाता है. But क्या कर सकते हैं जब हमारा budget वैसा हो और जब चीज़ें वैसी हो रही हों और like maybe you want to be at the top of your game even though you're provided the least amount of budget, because नहीं, मतलब that's how the world has become. But yeah, वो भी scene नहीं है, but it's just our focus is to obtain the best possible quality definitely. out of like जो सबके पास setup है. Yes, definitely. मेरे केस में भी ऐसा हुआ है कि for example a voice over artist has sent me something for mixing audiobooks, and there's always some sort of reflection even though they're sitting in the most silent atmosphere, and थोड़ा बहुत reflection off करना पड़ता है. उसके लिए I wanted to talk to you about, wanted to suggest you this plugin called RXD Reverb. I'm sure there are more plugins, but like ये directly लगाते ही you can notice the difference. It's also very AI based, right? Before Not sure. AI was cool. Before AI was not this cool. Not this cool. Run Yeah, the game exactly. or you get played. Learn to kill or you get slayed. Obviously, It's a कुछ legacy. तो इनके algorithms हैं इनके पास. Yeah. That they have trained this upon. Definitely, I think the new RX and the new Isotope would be even more like game changing. Definitely. Yeah. But इसको on और off करके देखते हैं अभी, बार सुनते हैं किस तरह से लग रहा है. Run the game or you get played. Learn to kill or you get 100% slayed. It's a rules legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish plate. हम तरिया तिल और ये पाटे hit. मुस्तकिल मंजिल का वेट. पेन में आग इन्हें क्या दूर रेड. दिल की राग का कस को straight. I So, meditate. Whatever room is there, it's just like थोड़ा सा compensate कर दिया उसने. Definitely not the most pristine result. Yeah, but with the right reduction, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ों को तुम कम ज़्यादा blend कर सकते हो, it really makes a big difference, at least like, because तुम नहीं चाहते कि थोड़ी तुम्हारी साउंड बॉक्सी करे. Okay. Another thing is using the decrackle. That would जितनी भी तुम्हारी माउथ की साउंड्स होती हैं, जितनी भी साउंड्स होती हैं माउथ की, and a lot of people have the tendency of having that a lot. And कभी भी तुम बहुत ही लाइट अकूस्टिक चीज़ मिक्स कर रहे हो, मे बी सम लो-fi track or some jazz number which बहुत ज़्यादा सुनाई दे जाएंगी. हाँ. So I mix Anna's like EP, and in that case like we can hear the mouth movements. I put the decrackle out, and if I just show you the output of what all things we are removing, it's pretty weird. Wet noises of the mouth. Yeah, so all these things like the strength you can allow, and it just cuts it out. So इसके बाद हमारी vocal mixing start होती है जब तुम्हारे पास सस्ता माइक हो. सस्ता मतलब कैसा भी है. I think जो crackle वाली चीज़ है वो तो किसी पे भी रिकॉर्ड हो सकती है, more or less. क्रैकल वाली चीज़ तो किसी पे भी यूज हो सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू रिवर्ब और स्पेक्ट्रल नॉइज, देयर आर कपल ऑफ मोर प्लगइन्स दैट आइसोटोप मेक्स. एज यू कैन सी हियर, मैं दिखाई देता हूँ. आइसोटोप के पास डी क्लिप, डी रिवर्ब, डी प्लोसिव, अरे भाई साहब, हर एक चीज़ को डी करने का, डी प्लोसिव, दिस गिटार डी नॉइज, सो दैट इज समवेयर ऑल्सो हेल्पफुल. And on the top, अगर तुम्हें थोड़ा और एडवांस जाना है, so you can open the standalone application of RX. And जैसे म्यूज़िक निकालने वाली चीज़ें सबसे पहले आइसोटोप में आई थी, आई थिंक सो, नॉट श्योर. म्यूज़िक रीबैलेंस के नाम से वो जो बेसिकली ऑडियो और उसको अलग, मतलब बीट और वोकल्स को अलग करने का. Exactly. वो पहले RX से ही करते थे. RX से आई थी वो. अब तो खैर. Cool guys, let's just directly dive into the vocal mixing after we have cleaned everything from our all the reverb, all the de-essing of the noise. We have not actually used a de-esser at the moment, but जितनी भी चीज़ें रिमूव हो सकती हैं उसके अलावा कि जो raw signal हमारे पास आया है, हाँ, it is in an optimum condition now. Exactly. So now from here we will just like take it to next level. हम लोग कोशिश करेंगे कि हम वही plugins use करें जो आपके पास थोड़े बहुत हो भी, because we don't want to sound fancy, right? DSR हम यूज़ करते हैं, RDSR by Waves. You will surely have that, and we will just I tend to use it the first thing because जितनी भी de-essing है vocals में से, because आपके vocals बहुत ज़्यादा sharp होंगे because it's recorded through USB mic, and it will be really shrill for sure.
because any और भी normal mics, yeah बहुत any सारे budget microphone mic, usually yeah. have the Even DSR. mid-range microphones Yeah. also need de-essing. Even the expensive microphones need de-essing, but in this case we'll have to dial it more. That's what I wanted. Yeah. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish plate. हम तरिया तिल और ये पाटे hit. मुस्तकबिल मंजिल का वेट. Pen में Always remember, de-essing also adds a bit of compression. I never knew about this, but क्या बात कर रहे हो? yeah, I heard it somewhere. Just notice it. Put it in your vocal chain. Turn it on, turn it off. क्यों क्योंकि उसमें threshold है. I still have to know why, but I can still tell you that as soon as you turn on or turn off the de-esser, तुम compression notice कर सकते हो. थोड़ा dynamics से भी change होता है. But I've heard it someplace and I still have to study that someone wrote somewhere that de-esser is also sort of a compressor which kills dynamics. Okay. हाँ. So we can get back to this with you guys later on, but ये definitely बात करने की बात है. Cool. So इसके आगे we'll just EQ the vocals with the basic EQ. कोई fancy EQ में जाने की जरूरत नहीं है. All EQs are the same more or less unless तुम कोई character add कर रहे हो. वो हम करने की कोशिश कर नहीं रहे. इस केस में हम लोग subtractive EQ करना चाह रहे हैं. क्या करना चाह रहे हैं कट तेरे को पता है? Lows. Lows. Fundamental Fundamental चीज कट हो सकती है गले की. हाँ. जो was I'm sure suppress करेंगे. I'm sure you do that as well. Yeah, definitely. But मैंने काफ़ी मिक्सेस सुने जिसमें लोग ये करते ही नहीं है. So like I mean they don't know that a अच्छा, they throat don't has to be know, put okay. down. I think they want run to the keep game it. or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw So you truth. can listen to the fundamental and उसको immediately हम लोग cut out कर देते हैं. And let's quickly talk about our vocals. इतनी thin हम लोग cues नहीं रखेंगे. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish plate. हम तरिया तिल और ये पाटे hit. First और second आप भी काटते हो ना? हाँ, a little bit of the mids, a little bit of the lowest. Exactly. So that because अगर आप कभी भी notice करोगे इस एरिया में आपके mid range होती है, like the mid, yeah, the mids, and this is like इस एरिया में depending upon like the vocals, of course हमारे जो vocals हैं उस हिसाब से यहाँ पे थोड़े हमारे fundamental पड़ रही है और यहाँ पर हमारे mids हैं. तो जितनी भी boxy साउंड होती है किसी भी vocals की, वो एक मिड रेंज में होती है. तो उसको अगर आप कम ज़्यादा करके देखोगे तो ऑलवेज गिव यू द राइट टेक्सचर फॉर योर vocals. सो यू कैन ऑलवेज ब्लेंड दिस एरिया. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए. इट्स ऑल सब्जेक्टिव. To add texture in the vocals. To remove the boxy effect from the vocals. Let's And listen. also, I mean, just play Run the with game or the you get- texture of the vocals, I guess. You play with the mids. क्या है ना? मतलब अगर आपको कैसा भी, अगर let's say you wanna make it sound a little boxy, कुछ भी मतलब कुछ भी है, अगर See, आपको it's nasaliness हटानी है उसमें से, nasaliness it's usually also comes in this around- area. In this area. यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे. It really depends बंदे की आवाज़ पे. Okay. बट मोर और लेस जितनी भी बॉक्सीनेस होती है किसी की आवाज़ में, चाहे मेल और फीमेल हो, वो उधर रहती है. सो व्हेन आई से बॉक्सीनेस, दैट मीन्स कि एक वोकल्स आपके कितने अच्छे लग रहे हैं, उनका कैरेक्टर कितना अच्छा लग रहा है इन कंपैरिजन टू योर सॉन्ग. ओके, सो दैट वी ऑलवेज प्ले विद द EQ टू ब्लेंड द राइट कैरेक्टर टू मेक इट साउंड बेटर With the song. So yeah, if it sounds better or not to you would be dependent upon like these switches that you're gonna like notes that you're gonna switch. तो ये वाला एरिया में हम इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं जिससे हमारा जो गले का वोकल परसेप्शन है और हमारे मिड्स का, वो किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं हमारे बाकी सारे गाने के साथ. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish plate. हम तरिया तिल और ये पाटे hit. मुस्तकबिल मंजिल का वेट. पेन में आगे ने क्या दुरेड दिल की राग. So you can hear as soon as I added the compressor, immediately vocals एकदम से सेट करने लग गए बाकी सारे मिक्स के साथ, राइट. सो अगर हम ड्रम्स भी सुनते हैं यहाँ पे, कंप्रेशन अब ऐड करना शुरू करेंगे थोड़ी देर में, इसको ऑफ रखते हैं, EQ ऑन और ऑफ करके फिर से सुनते हैं. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish plate. हम तरिया तिल और ये पाटे. And this is like one question from here that a lot of beginners ask me, sir, अब volume कम हो गई यहाँ से, so what should we do? So whatever changes we make, whatever EQ changes, whatever surgical EQing we do, it will always affect the levels. Definitely. But ऐसा नहीं कि यहाँ से एकदम लेवल ही बढ़ाने लग जाओगे, because we need to always remember कि हम जो आगे भी करने वाली चीज़ें से उनसे compression भी levels बढ़ेंगे ही, वापस आएंगे, बढ़ेंगी, compensate हो जाएंगे. Yeah, definitely. So let's start adding a bit of compression. Compression हम क्यों add कर रहे हैं? Because we want to push the vocals, we want to make it sound like good in the sense of like good loud. Good.
लफ्ज़ों में जादू they gravitate when Thumbnail. spitting facts I just dedicate Thumbnail. like pull the trigger I don't hesitate ये fake और ये phony सब devastate मेरे सपने करे मुझे medicate मेरे अपने करे मुझे levitate जाने दे chill लफ्ज़ों में जादू they gravitate when आपको spitting ऐसा facts नहीं I लग just रहा कहीं पे dedicate like डीएसिंग ज्यादा हो रही, लिस्प हो रहा है ज़्यादा हो रही है? कहीं कहीं पे? legacy not a clickbait Legacy serving raw हो गया। legacy not a clickbait है ना? legacy not a ये clickbait मैंने serving raw truth खुद like से a नोटिस करी थी, अगर आप ज्यादा डीएसिंग करते हो तो बंदा लिस्प हो जाता है, लाइक फी हो जाता है वो। Yeah. I just noticed it for the first time. पहली बार नोटिस कर रहा हूँ मैं अभी ये। हैं? हाँ कि ऐसा भी हो रहा है कि लिस्प हट हाँ, गया if you DS a lot, Yeah. तो वो ऐसा लगता है कि बंदा लिस्प है। So this could be a effect we could use in one of our reels. Yes. And डीएसिंग कर दो। yeah, so from here अगर किसी को जानने क्या कर सकते हैं और आई फील सैचुरेशन तभी ऐड करना चाहिए जब उसकी नीड हो, जब तुम्हारे वोकल्स में वार्मथ की पॉसिबिलिटी हो। Add saturation to vocals now. पहले मैं पख्तानी की जबरदस्ती ऐड कर रहा था, हाँ but now I've realized कि उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बहुत बेकार भी जाते हैं। हाँ, मतलब it's very Right. easy to ruin Yeah, those your things. vocals with saturation. Exactly. हाँ। Cool. So अगर हम हमारे वोकल्स मेन वोकल टेक 1 में हम लोग यहाँ पे जस्ट इन केस लोग कंफ्यूज हो कि कहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, और क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी साफ़ नहीं है तो अगर हम ये वाला ट्रैक्स को डिलीट मार दें, एफेक्ट सेक्शन को इधर ले आए, तो इसके अलावा हमारे सारे वोकल्स ही हैं। वी कैन वोकल्स ग्रुप मेन ऐसे बना देते हैं और इसके अंदर हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। सो कंप्रेशन के बाद another thing that we need to add is limiter, which I told you earlier कि limiter का मैं यूज़ करता हूँ to push the vocals even further. So हम लोग एकदम loudest part सुनते हैं ट्रैक का। किया वो भी असल में जानी, मैं रुकता मगर वो अधूरी कहानी, मैं लेता रहा आज दुनिया दीवानी, मैं मेहनत को दूंगा ये पूरी जवानी, सुना है सबको पर अपनी ही मानी, पापी भी मैं हूँ तो मैं ही हूँ दानी। वो run the game or you get played, learn to kill or you get slayed, it's a legacy not a clickbait, serving raw truth like a fish blade, हम दरिया दिल और ये बातें hit, मुस्तकिल मंजिल का वेट, पेन में आगे ने क्या दूं रेड, दिल की राख का कस को straight, I meditate and I elevate, रखो सारी खबर ऐसे up to date, मेरे लफ्जों में जादू they gravitate, when spitting facts I just dedicate, like pull the trigger I don't hesitate, ये fake और ये phony सब devastate, मेरे सपने करे मुझे medicate, मेरे अपने करे मुझे levitate, जाने दे Cool. So you notice that what I did there is basically I उनको क्लिप गेन करके इक्वलाइज कर लिया लेवल। जब मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ, so I went back the same thing that we said earlier. Yeah. I went back to my clipping and I blended the कंप्रेशन की कंप्रेशन पे कोई भी चीज़ आ रही है तो वो कितनी आ रही है, EQ पे भी कितनी चीज़ आ रही है, कितनी आ रही है, तो आई फेल्ट कि चीज़ें ज़्यादा लाउड हो रही हैं एंड वोकल्स वर कमिंग आउट टू मच। यू कैन ऑलमोस्ट विजुअली सी दैट कि कुछ वेवफॉर्म्स अगर ब्रॉड और थिक दिख रही है, हाँ, तो दैट मींस कि वो ज़्यादा लाउड हैं, हाँ, एंड देन यू कैन गो इनटू द क्लिप गेन एंड इट्स जस्ट Right. दैट कि वो विजुअली आपको ठीक दिख रही है, तो हाँ, इट विल मोर और लेस बी इन द कंसिस्टेंट जोन। कंसिस्टेंट सो जोन। तुम कंप्रेसर तभी ऐड, लोग कंप्रेशन पता है एक उस चीज़ के लिए भी ऐड करते हैं कि जो भी लेवल्स नीचे हैं वो ऊपर आ जाएं और जो भी लेवल्स ऊपर हैं वो नीचे हो जाए। बट लेबर वर्क अगर तुम कर रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग इंडिविजुअली एंड लाइक सेलेक्टिंग योर क्लिप, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगा, सबसे राइट में ये वाला जो क्लिप है ये थोड़ी कम लाउडर है इन दोनों से, तो हम इसको ऊपर करेंगे, बट जो बीच वाला एरिया है वो ज़्यादा लाउड हो गया, हाँ, कुछ एक पार्ट है राइट, बहुत लाउड, तो उसको हम आएंगे वापस, विल सेलेक्ट दिस एरिया एंड विल पुश इट डाउन अ बिट। सो इस तरीके से क्लिप गेन करना जरूरी है। तो आपका कंप्रेसर ये आपका काम तो कर देगा, बट इट विल डेफिनेटली चेंज द कैरेक्टर एट सम पॉइंट एंड द काइंड ऑफ चेंजेस दैट यू हैव मेड एंड द फैक्ट दैट यू आर लेजी नॉट टू चेंज देम विल अफेक्ट योर मिक्स। ट्रू। और फिर बाद में इट ऑल एड्स अप टू कि आप अपनी लाउडनेस नहीं पुश कर पा रहे मिक्स की, राइट, बिकॉज कहीं पे कुछ कैरेक्टर खराब हो गया, कहीं पे कुछ खराब हो Right, गया, right. एज सून एज यू पुश इट पास्ट 3-4 अपना डीबी उसका लिमिटर से वो फटने लग रहा है, अब आप बोलो क्या हो गया। वही यार, अब मतलब वही सीन है। तो अब लेफ्ट ट्रैक को सुनते हैं, लेट्स यूज द लिमिटर नाउ। Run the game or you get played, learn to kill or you get slayed, it's a legacy not a clickbait. सो या फ्रॉम हेयर हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं वोकल मिक्सिंग करते हुए कि हम प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं और हम लोग चीज़ों को लेवल भी साइड बाय साइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो लेवलिंग एक ऐसी चीज़ रहेगी जो हमेशा करते रहनी पड़ती है, हैंड इन हैंड चलती है, मतलब Exactly. बेसिकली इफ यू आर एडिंग हाँ. समथिंग या कुछ भी आप डाल रहे हो तो मेक श्योर यू आर आल्सो लेवलिंग, क्योंकि एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इफ समथिंग गेट्स लाउडर इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स लाइक साउंडिंग बेटर टू यू।
या हर एक क्लाइंट के साथ, हर एक इंजीनियर के साथ यही एक इशू है ना कि एक लाउडर इज अगर ऑलवेज वो बेटर. लाउड जाती तो हाँ अच्छी लग रही है वो, Right. ऑटोमेटिकली इट्स लाइक ऑटो रिस्पॉन्स Yeah. ऑफ योर ब्रेन, या बढ़िया बट लग इन अ रही है। मिक्स, अब द बेस्ट मिक्स की वोकल सबसे सही ब्लेंड हो रहे हैं. तो जिस पर्टिकुलर ट्रैक पे तुम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे रिवर्ब सेंट्स यूज़ करो, उसी पर्टिकुलर ट्रैक को ही तुम गेन, उसी पर्टिकुलर ट्रैक का ही पोस्ट फेडर जो है उसको डाउन कर सकते हैं हम लोग. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish blade. हम दरिया दिल और ये बातें hit. मुस्तकिल मंजिल का वेट. पेन में आग इन्हें क्या दूं रेड. दिल की राख का कस को straight. I meditate and I elevate. रखो सारी खबर ऐसे up to date. मेरे लफ्जों में जादू they gravitate. When spitting facts I just dedicate. Just like pull the trigger I don't hesitate. ये fake और ये phony सब devastate. मेरे सपने करे मुझे medicate. मेरे अपने करे मुझे levitate. जाने दे जाने दे जाने दे चल जीता है कल तो जीता है. जाने दे So, जाने दे चल. जब मेरी एक बेसिक चेन बन जाती है तो मैं उसी को कॉपी करके किसी और ट्रैक पे भी लगा देता हूँ, लगा जिससे सकते हैं जिससे हम उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उन वोकल्स पे काम कर बाकी सकें. vocals पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो चीज़ें फास्ट हो जाती हैं स्टैंडर्ड तरीका है हाँ. एक वोकल के हिसाब से चेन बना लो एंड देन यू जस्ट कॉपी बिकॉज बाकी सब कैरेक्टर्स का भी सेम रहेगा. तो हमने इनको यहाँ पे पैन कर रखे हैं, हमारे पैंड डबल टेक वोकल्स हैं इस केस में. फ्रॉम द प्रोड्यूसर वी हैव गॉटन दिस. जाने दे चल बीता है कल तो बीता है पर. जाने दे चल मेहनत सच्ची तो मीठा है पर. जाने दे चल चल करूँ बारी और कंधों में बस. जाने दे चल सुन. सो फॉर सम रीज़न इस वोकल्स में वो स्टीरियो इफेक्ट सुनाई नहीं दे रहा, लाइक कि हाँ बेटर कि हम उसको ना ही यूज़ करें. बिकॉज अगर और चीज से एमुलेट कर ले इफ नीडेड, या कि वो मेटा ट्यून से भी हो सकता है. इट कैन आल्सो बी डन विद द And यूज ऑफ डबलर. या एक्स्ट्रा सस्ती ट्रिक भी होती है कि तुम चीज़ों को थोड़ा अगर तुम लेट कर दोगे हाँ एक clip को, डिले ऑन also it will definitely sound like stereo. जाने दे चल 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 मेहनत सच्ची तो मीठा है पर. जाने दे ये तो खैर थोड़ा ड्रास्टिक हो गया. इज साउंडिंग स्लाइटली ऑफ. इसको आई गेस ये नहीं, उससे ज़्यादा बहुत जाने दे, अच्छा होता है जाने जो दे, एबल्टन जाने का दे. डिले वाला वो है, डिले कंपनसेशन वाला. एंड इफ यू लाइक ओपन दैट और उसमें हल्का सा 6-7 मिलीसेकंड बढ़ा दो, या इट जस्ट लाइक इट्स हियर ना, यहाँ पर जो होता है. एग्जैक्टली 6-7 मिलीसेकंड बढ़ा दे यहाँ से ऑटोमेटिकली हाँ. मस्त हो जाता है. वी कैन डू दिस एज वेल. ये देखो. Cool. जाने दे चल मेहनत सच्ची तो मीठा है पर. So it really depends कि तुम्हें किस चीज़ को बाहर करना है. तुम्हें मेन मोनो वोकल्स को बाहर करना है जिससे मिड्स बढ़े, या फिर उस पीछे कैरेक्टर को नीचे रखना है, फिर उस वाले पीछे कैरेक्टर को ऊपर रखना है. डिपेंड्स ऑन यू किस तरह कैरेक्टर डिपेंड्स तुम सारे अपॉन क्या आप गाना कैसे स्ट्रक्चर करते हैं. दे कि क्लाइंट को क्या चाहिए. एग्जैक्टली. जाने दे चल बीता है कल तो बीता है पर. जाने दे चल मेहनत सच्ची तो मीठा है पर. जाने दे चल कम करूँ भारी और कंधों में बस. जाने दे चल सुन. अब इन वोकल्स में मेरे को जो वो मैं सैचुरेशन की बात कर रहा था वो मेरे को थोड़ा कम लग रहा है. सो माय वे ऑफ सैचुरेशन इज ईदर यूजिंग द रिटर्न चैनल. हाँ, तो अभी हम बेसिक चेन यूज़ कर रहे हैं गाइस, बट इसके बाद हम लोग बहुत ही तेज़ी में अपनी मेन चेन भी बताएंगे, बिकॉज हम लोग हमेशा स्टॉक प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं. इस केस में हम लोगों ने सब लोग के लिए रखा है कि एक्सेसिबल प्लगइन्स यूज कर लेते हैं जो सबके पास हो. सैचुरेटर बेसिकली यहाँ पर ड्राइव को बढ़ा देगा, बट एट द सेम टाइम वो लेवल्स को भी बढ़ा देता है. हाँ, तो हम लोग को कंपेंसेट करना ज़रूरी है. तो हम कोई भी मैं एक एडवांस केस में तो ऑक्साइड टेप एक प्लगइन है UAD का यूज़ करता हूँ, जिससे थोड़ा टेप एमुलेशन ऐड कर देता हूँ मैं, या फिर कोई भी decapitator भी हो सकता है, Decapitator भी अच्छा साउंड, which is also a plugin from, which is also a saturation plugin from Soundtoys. तो बट हम लोग एक बेसिक वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तो हर एक वोकल चेन के अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर देंगे इसको. नशों के गोली है पैंचों की बोली है वर्किंग सो हार्ड क्योंकि फ्यूचर में रोली है बिन मांगे भरी. अब फाइनली वो जो एक कैरेक्टर होता है ना, लाइक गले का और जो मिड्स का, वो बाहर निकल के आ रहा है. मेरे को इस EQ पे वापस आने का मन कर रहा है. Okay. Because this is blending the mids again. Okay. तो आप और नशों के गोली है पैंचों की बोली है वर्किंग सो हार्ड क्योंकि फ्यूचर में रोली है बिन मांगे भरी. उस रब ने ये झोली है उसने ही दिया सब वो ही अमोली है. अपनों से कैसी ये आंख मचोली है रंग में तू रंग जाब जैसे ये होली है. पंगा तो ले छोटे जेबों में गोली है. अल्फा भी रेडी और रेडी है टोली. नाउ फ्रॉम हेयर अगर आपको लग रहा है कि आपके अभी भी लो एंड में ज़्यादा कैरेक्टर आ रहा है या फिर कुछ चीज़ें आप थोड़ी और EQ कर सकते हो, सो आफ्टर द लिमिटर इज़ देयर यू कैन यूज़ Pro Q3. इसके लिए इस केस में हम लोग कोई एडवांस प्लगइन यूज़ करना ही पड़ेगा ट्रिक के लिए. अगर पर आपके पास कोई और डायनेमिक EQ है तो यू कैन डू दैट. तो Pro Q3 में एक डायनेमिक
EQ हम लोग ऐड कर सकते हैं ना कभी भी. So we can select a point, use this thing and make these kind of points. So I usually एक तो मैं लो एंड में और एक मिड रेंजेस में दो ऐसे पॉइंट्स बना लेता हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं ब्लेंड करता हूँ. Pull the trigger, I don't hesitate. ये fake और ये phony सब devastate. मेरे सपने करे मुझे medicate. मेरे अपने करे मुझे levitate. जाने दे chill beat. Pull the trigger, I don't hesitate. ये fake और ये phony सब devastate. मेरे So ये सपने करे. basically आपका post chain EQ हो गया एक तरीके से कि once you are done with all the effects and everything, तब एक बारी और उसको tame करने के लिए use dynamic EQ. Taming it according to the blending, हाँ, of the rest of the track. ये बहुत in वो है कि you need to listen to this in exactly in context with everything that's happening in your track. Exactly. तभी आप उस हिसाब से डायनामिक EQ लगाओ कि कहाँ पे lows कम. अगर आपको लग रहा है, अगर किसी को भी लग रहा है ना कि उसने बहुत एक अच्छी चेन बना दी है, उसके बाद भी उसके वोकल्स सही से ब्लेंड नहीं कर रहे, दे आर maintaining the right EQ in itself, they are maintaining the right dynamics, but at the same time it's not blending with the track. And इसका और leveling का खेल है, I feel in my opinion. Leveling करते रहो और फिर तब भी blend नहीं बन रहा है तो you use a dynamic EQ. Some dynamic. So दो लास्ट चीज़ें, एक तो मैंने कट कर दिया यहाँ पर, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सूद यूज़ करता हूँ and that would also come up in an advanced chain. So guys, बहुत जल्दी से एक एडवांस चेन की बात करते हैं हम लोग. अगर इसकी जगह हम लोग कोई और चेन बना रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ग्रुप करके रख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं and from here we can just like quickly use Pro Q3. Yeah, Pro Q3 is the at the start and at the end. At the end. हाँ, ये मैंने आपसे ही सीखा basically कि दो Pro Q लगा लो. Start and at the end के लिए. Right. And then उसके बीच में start adding whatever you want to add. Yeah. If you want to cut out more things from your vocals later on in an advanced way, you can always do a surgical EQ, but I would suggest do it at the start. Spitting facts are just dedicated. Like pull the trigger, I don't hesitate. ये fake और ये phony सब devastate. And these kind of things you can always do once the entire chain is done, because जब आप उस loudness पे उस vocals को सुन रहे होगे तब आपको पता होगा कि आप क्या कट भी कर रहे हो जिससे कुछ effect पड़ रहा है compressor पे या फिर limiter पे उस चीज़ के करने का. Exactly. हाँ. Really important tips है. At the same time हम लोग अपने एक saturation पहले से ही chain बना के रखेंगे. So I'm using Modt now. Since like started using Modt now. जब से हमने थोड़ी बहुत reels पे इसके प्रोसेसिंग करी. ग्रुप है वो इसमें effect. इसमें एक Vox वाला effect है जिसमें बहुत ही अच्छा blend करता है character. So let's bring it from 0 to 100. To date, मेरे लफ्ज़ों में जादू दे gravitate. Man spitting facts are just dedicated. Like pull the trigger, I don't hesitate. तो इससे पहले ही character achieve कर ले तो थोड़ा सा and then you control that character. Yeah, because you can see high, mid, low amount. You can blend it accordingly how much you want. In this case, we want a little bit of the low end character, so हम थोड़ा बहुत ज़्यादा compress करते हैं उसको. High end थोड़ा कम करते हैं because में ज़्यादा है ही already, और timing ये सब चीज़ें भी कम करके we can blend this thing. And of course, there's always a output knob. Output gain, yeah. To date, मेरे लफ्ज़ों में जादू दे gravitate. Man spitting facts are just dedicated. Like pull the trigger, I don't hesitate. Set the tone, उसमें lows और highs की आप tone भी यहीं पे set कर सकते हैं. We'll come back to this in a bit. Let's just quickly compress this thing and deal with the levels so that we can always know कि हम जो भी changes कर रहे हैं वो in respect to the compressor और limiter क्या हो रहा है. 1176. I use the 1176 compressor all the time on my vocals. To date, मेरे लफ्ज़ों में हाँ ठीक है. तो जो CLA 76 है वो भी तो इसके साथ ही इसके उस पे ही मॉडल्ड है. I think so. Yeah. CLA 76. I think so. I use Not CLA sure. 76 on. Okay. No, CLA 76 is a really good. I think there's one compressor that you really like on everything that you can use and control easily. So 1176 is for me the right character that is there, right? I can't afford a hardware, but I can definitely afford 1176. You need some UAD stuff. To date, मेरे लफ्ज़ों में जादू दे gravitate. Man spitting. इस stage के लिए my go-to would be CLA 76. And another thing I want to add to all the engineers that are watching this podcast is that कि अब तुम attack और release को अगर जितना blend करोगे उस हिसाब से तुम्हारे vocals आगे और पीछे sound करेंगे. Let's just dial the attack. आगे और पीछे as in terms of the mix. Yeah. कि जितना पता नहीं क्या effect होता है, but this is the magic of a compressor. If you know how to basically कंट्रोल द कंप्रेसर और उसको पता है कि तुम्हें किस तरह से मैं अटैक को रिलीज को हमेशा शिफ्ट करता हूँ तो मेरे वोकल्स पीछे या फिर आगे सुनाई देते हैं. लेट्स जस्ट लिसन टू इट इफ यू कैन. दिस इज समथिंग दैट यू शुड बिकम हैबिचुअल टू. यस डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली. यू कैन जस्ट लाइक लीव योर अटैक एंड रिलीज टू दिस. जस्ट मतलब पहले यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इससे हो रहा है एंड देन ट्रेन योर ईयर्स टू दिस कि अच्छा अगर मैं अटैक को रिलीज करूंगा आगे पीछे तो क्या हो रहा है. आल्सो लेवलिंग माय वोकल्स. Right. Just remember, you should notice this. Maybe this is a trick that they can take from here and try to listen to what we are saying.
what I mean with attack and release is कि जैसे अटैक थोड़ा जल्दी करते हैं तो vocals उस हिसाब से compressed हो रहे हैं जिससे उनका perception कितना जल्दी सुनाई देना चाहिए या लेट सुनाई देना चाहिए, उस वजह से वो vocals upfront या फिर backward सुनाई देते हैं. Got it. Somehow this is like the magic. So we are always blending the right attack. कितना लेट होना चाहिए वो, ज़्यादा जल्दी भी ना हो जाए और ज़्यादा लेट भी ना हो जाए. Exactly. So we are maintaining. I usually when I maintain these kind of like attack on this level, it comes up front. Up to date, मेरे लफ्ज़ों में जादू they gravitate. Man spitting facts, I just dedicate. Like pull the trigger, I don't hesitate. Get big, get police, I devastate. मेरे सपने करें मुझे medicate. मेरे अपने करें मुझे levitate. जाने दे, जाने दे, जाने दे. Up to date, मेरे लफ्ज़ों में जादू they gravitate. Man spitting facts, I just dedicate. Like pull the Even if I'm using the compressor of Ableton Live, अगर तुम उसमें अटैक और रिलीज को फास्ट कर दो और रिलीज थोड़ा स्लो कर लेट कर दो कभी कभार फास्ट कर दो, इट रियली डिपेंड्स ऑन द वे यू आर सिंगिंग एंड व्हाट नॉट. बट उससे आगे पीछे कितने होते हैं वोकल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे वोकल्स आगे क्यों नहीं आ रहे, मैं कितने डायनेमिक्स कर दिए तब भी नहीं हो रहा, अटैक एंड रिलीज. यस. Up to date, मेरे लफ्ज़ों में जादू they gravitate. Man spitting facts, I just dedicate. Like pull the trigger, I don't hesitate. Get fake. नशों के गोली है, भैंचों की बोली है, working so hard क्योंकि फ्यूचर में रोली है. Ableton का stock limiter, you use this UAD. I use this is my buddy. Go to limiter. Precision. Precision is like my best like it's my buddy definitely because I use it everywhere. I use it on vocals, I use it on The like master. hair as well. Yeah, I know. But this time I'm using a Pro L2 because it come processing like power लेता है. But this is like the best plugin I like for limiting because बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट साउंड करता है मेरे को. ये सबसे ट्रांसपेरेंट यही है इन माई ओपिनियन. बट लाइक मेरे को Pro L2 बहुत पसंद है. अपना वो है, like I love L2's character. I love L2 as well because L2 में काफ़ी सारे options हैं यहाँ पे. I love the dynamic style. वो लगा के I know how to mix into that. Yeah, but like, the thing is that like for you are really hip hop oriented at the moment. वही Yeah, for me it's like this is like the versatile plugin got that I can use it on acoustic stuff. Yeah, got it. The same way use Pro Q2 here. Pro Q3 at the end. Yeah. 2 or नशों 3. के गोली है, भैंचों की बोली है, working so hard क्योंकि फ्यूचर में रोली है. बिन मांगे भरी उस रब ने ये झोली है. You don't need to surgical EQ till the context of like pinpointing things again, and you just need to sometimes see the fundamental frequency and also listen to the frequency and dial the settings that way. हम लोग ही high end का इसलिए कट कर रहे हैं because एक हद तक ही high end के characters go well with our vocals. roll off कर रहे हो rather than a steeper cut. Exactly. Use some sort of soothe. This is another expensive plugin, but अगर तुम afford कर सकते हो तो बहुत ही काम आता है यार. नशों के गोली है, भैंचों की बोली है, working so hard क्योंकि फ्यूचर में रोली है. बिन मांगे भरी उस रब ने ये झोली है. उसने ही दिया सब वो ही अमोली है. अपनों से कैसी ये आंखें मचोली है. रंग में तू रंग जाब जैसे ये होली है. पंगा तो ले छोटे जेबों में गोली है. अल्फा भी रेडी. जाने दे. जाने दे. Let's listen to what soothe is doing. Okay. ये सब रिमूव कर रहा हो. So I think in context of if anyone who is recording on a really cheap microphone and wants me to fix their vocals, I would use Soothe to a lot. Definitely करना ही पड़ेगा. Resonance काटनी पड़ेगी. जो mostly problem आती है, it is of the harshness and the resonance. Yeah. अगर सस्ते माइक पे ज़्यादा you put on some effects and stuff, it quickly becomes harsh. For sure man. अब जैसे ये हमारी जो सस्ती चेन से कंपेयर करें हम एक्सपेंसिव चेन को, तो एक्सपेंसिव चेन में आपने DSR नहीं लगाया है. एक्सपेंसिव चेन में DSR नहीं लगाया. हमारे भूल गए. हमारी एक्सपेंसिव चेन सस्ती बन गई नहीं हो पाई अभी. So an expensive DSR would be the Slate Digital DSR, which is called expensive. Okay, इसका तुम कोई preset लगा सकते. Expensive है उसकी. You can dial in the sensitivity amount. मैंने नहीं करा कभी यूज, पता है. Even though I do have the Slate Digital का वो. Right. So मैं यूज ही नहीं करा यार. Crazy. No, so this is one thing you can try out. नशों के गोली है, भैंचों की बोली है, working so hard क्योंकि फ्यूचर में रोली है. बिन मांगे भरी उस रब ने ये झोली है. उसने ही दिया सब वो ही अमोली है. अपनों से कैसी ये आंखें मचोली है. So now the chain is done. We can add a bit of reverb in here. नशों के गोली है, भैंचों की बोली है, working so hard क्योंकि फ्यूचर में रोली. Go to reverb plugin. Yeah. The stock. I would use mostly the stock. Sometimes, to be honest, like I've started using stock more than like even using Valhalla because I am forcing myself to control the stock plugin.
like at the moment. ठीक है. But like because तेरे को भी ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये क्या बात कर रहे हो यार, ये तो वेलहाला तो वेलहाला है. नहीं ऐसे नहीं नहीं हो जाता है यार. नहीं वो भी बात नहीं है. I feel कि वेलहाला में you have more control over the sound. Not really. हाँ If you know how this thing works, वो भी बात है. you can really. It's more of so you might being never have comfortable. noticed, but like our Ableton stock plugin has a chorus in it. अभी तो आया है. Right. Never note. अभी नई अपडेट में आया. हाँ तो नए वाला अपडेट में तुम never noticed it. So अब इसमें मैं reverb सुनूं. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish plate. हम तरिया तिल और ये पाटे hit. मुस्तकिल मंजिल का वेट. पेन में आग इन्हें क्या दूरेट. दिल की राख का कस को straight. I meditate and I elevate. रगो सारी खबर I stay up to date. मेरे लफ्जों में जादू they gravitate. When spitting facts I just dedicate. Just like pull the trigger I don't hesitate. ये fake and ये phony सब devastate. मेरे सपने So if you want more chorus, more things to be affected, you can always use this plugin. और इस पे chorus add करो, EQ add कर सकते हैं. One trick that I can share, which also comes in the advanced chain, for like manipulating your reverb, is that you can always cut out the low mids and cut out the highs from the reverb. which is meant for the vocals. Definitely हाँ उसमें needed नहीं होता क्योंकि आप क्या करोगे लो पार्ट ऑफ द वोकल पे रिवर्ब का. Exactly. और तुम्हारे vocal जो clarity है और बढ़ जाएगी. Exactly. यहाँ पे आप साइड चेन प्रेफर करते हो कभी रिवर्ब? साइड चेन मैं प्रेफर करता हूँ कभी कभार when that effect is needed. बट मैंने साइड चेन काफ़ी यूज़ करके देखा है रिवर्ब पे और वो हमेशा सुनाई कहीं ना कहीं दे जाता है यार. लाइक somehow like even if you blend a little bit of it you can always use it, to be honest. Like I feel if you can creatively use it and creatively that's coming in your music, go for it. But when that track is supposed to be like, let's say, acoustic track where we are mixing certain thing in a particular way and we're using it for a particular effect कि जगह बने, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो EQing करें और like I think a little bit of sidechain is still fine. Cool plugin भी है, track spacer या कुछ ऐसा है उसका नाम. So I have not used it, but I've heard of it. If you have this soothe on the other hand, you can always put it here, turn on the sidechain function. Same. Where and Does like the same thing. I think this is more advanced AI version of like the tip. In this sense कि तुम ग्रुप मेन को ही कलेक्ट करो. I guess. पूरे वोकल ग्रुप को मैंने पकड़ लिया और उसमें हम वोकल्स को स्पेस बना रहे हैं हार्ड मोड में in the mids, a little bit like this, and we'll have the space. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy. Remember to turn on the sidechain. Exactly. Run the game or you get played. Learn to kill or you get slayed. It's a legacy, not a clickbait. Serving raw truth like a fish blade. अब ये resonance level पे हटा देगा चीजें rather than it'll make space for our vocals. Definitely. So this is one thing that I do mostly on my drums. Like अगर मैं इसको copy करूँ तो मैं इसको copy करके 808 पे लगा दूंगा, drums के ऊपर लगा दूंगा and melodic tracks के ऊपर लगा दूंगा. 808 पे भी? Who gives a fuck? That's the thing. That's the idea. Because it's not gonna spoil anything in 808. We are defining low end में तो we are defining it कि तुम mids में काम कर रहे हो. Got it. So in the mids there might be some mids in the 808 that are coming and I'm making space for my vocals inside that. वो थोड़ा priority की चीज़ है. Like this is game changing because earlier I used to sit for hours and figure out कि मैं अपने vocals के कैसे बना सकता था. अब with Soothe I just put it on there and there you go. So this is like some golden tip. Golden tip. Cool. So this is how we mix our vocals more or less. Like from here we will definitely listen to it 20 times and just like trying to understate कर दिया आपने, but yeah, definitely yeah. You go back and forth a lot and then you adjust the levels if needed. You also go back to the EQ and so थोड़ा बहुत चीजें होती है. Definitely. Also a lot of things come up when you are trying to crank up the mix. अभी तो हमने levels कर लिए, but अभी जब आप थोड़े से levels बढ़ाओगे तब आपको कुछ सुनाई देगा यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है. I mean yeah exactly. मतलब I think it's also important to not overthink. But like अगर हमने इस level तक mix कर दिया है तो हम लोग like जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें limit कर रहे हैं, for example one last thing we can end with that is that कि अगर यहाँ पर हम limiter के through push कर रहे हैं track को, कितना sound कर रहा है. नशों के गोली है, पंचों की बोली है, वर्किंग सो हार्ड क्योंकि फ्यूचर में रोली है, बिन मांगे भरी उस सबने ये झोली. बट 9 dB अगर हम बढ़ा के यहाँ से चीज़ें कम कर दे तो we can again balance out the thing. नशों के गोली है, पंचों की बोली है, वर्किंग सो हार्ड क्योंकि फ्यूचर में रोली है, बिन मांगे भरी उस सबने ये झोली है, उसने ही दिया सब वो ही अमोली है, अपनों से कैसी ये आंख मचोली है, रंग में तू रंग जाब जैसे ये होली है, पंगा तो राइट. सो अब यहाँ पे ब्रिक वॉल लिमिटर लगा देते हैं सुनने के लिए फिलहाल. तो अभी हम सुनने के लिए लगा रहे हैं. जब हम मास्टर के लिए जाएंगे तो ये वाली हम लोग मास्टर के जो लिमिटर लगा इसको ऑफ कर देंगे.
दैट्स द आइडिया. Definitely. बट लाइक या सो एज यू आर सेइंग कि क्या चीज़ें ब्लेंड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये ब्लेंड करूँगा कि क्या फाइनल टोन होनी चाहिए उसकी, और उसके हिसाब से जो फिर से कैरेक्टर बन रहा है वोकल्स का, और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता. I'll always go inside the melodic track because अभी melodic track mix नहीं है, कहीं पे भी EQ नहीं लगा हुआ है. हाँ, definitely. मतलब ये तो हाँ. हमने चीज़ skip कर दी because we wanted to cover Yeah, the vocal come to the things. vocals, yes. But yeah, so drums you set up your foundation with the drums. Exactly. Then you start doing the vocals. Right. And then according to No, the vocals. start doing the drums, then the 808 comes in. No, like definitely. processing मतलब that, yeah. drums के अंदर ही Yeah. मैं मान लूँ, चलो basses भी आ गए drums के साथ. And then you start doing the vocals, and with the vocals you provide that padding or the surrounding with the melodics. Right. क्योंकि आपको vocals upfront रखने हैं, and then the melodic element is the support for Exactly. the vocals. Exactly. जो So उसको drums जो और उसका अभी glue उसको करेगा जगह दे रहा उसको. है, बट डेफिनेटली योर आर्टिस्ट विल बी लाइक यार वो पियानो पीछे और वो फ्लूट साउंड नहीं कर रहा. सो इस कंटेक्स्ट से कि हमारे ड्रम्स 808 और वोकल सही चल रहे हैं, वी कैन जस्ट blend the right amount of melodic. Blend the things right needed. amount of melodic, exactly. जो And if the ज़्यादा artist wants independent more है. or less, and if the artist is like नहीं आपकी मेरी vocals में चाह रहा हूँ नीचे because he's a little bit conscious about his vocals, it happens. You can put it down, put the melodic things Melodic up, thing and up you'll front, always yeah. have this area to blend, and always use in groups. So yeah, this is how you This is mix how you like mix a track. a track which is like sounding like this, which is fairly a beginner's track in our opinion, because if you're sending our beat to a beginner, and if they are recording it on at their home in this in a much less acoustically treated place, तो इस तरह से हम उसकी mixing कर सकते हैं. There are more things that we talk about in such videos that you are seeing right now. So हम लोग इस तरह के podcast करते रहते हैं. So if you are checking out our channel on Instagram, we post a lot of funny content, and we post a lot of engaging content yeah, around music production and informational hottest tips as well on this channel. So make sure to fucking subscribe and leave out some comments, guys, कि आपको क्या लगा हमने जो vocal mixing change I use करी है. think this is a different kind of approach to the podcast. So Right. if you did enjoy this, you can let us know, and then we can maybe bring in more. Studio में बैठ के we can discuss some other topics, and if you have some other topics that we can Exactly. discuss specifically in the studio and have a conversation around that, Right. you can leave that in the comments as well. We sign out here, guys, but yeah, let us know in the comments again, and thank you so much for watching this video. If you've watched this video till the end with us, and this is what we wanted to share today, so thank you so much for joining in. Bye bye. We'll see you in the next one.